Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on, now we'll start problem number 17. See the 17th problem. The following is the trial balance of ABC Company Limited as at 31st March 2015. Trial balance is given. Prepare profit and loss statement and balance sheet in the form prescribed under the Companies Act. So whatever format we are following, all the formats are according to the provisions of the Companies Act 2013. Now, trial balance. Authorized capital 50,000 shares at rupees 10 per share 5 lakh. Subscribed capital 10,000 shares of rupees 10 per share 1 lakh. Remember one point, authorized capital is only an information. It will not be taken in the balance sheet. Authorized capital only should be shown in the notes. ये नोट्स जो बनाएंगे, नोट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each 5 lakh. इसको क्लोज कर देंगे. This 5 lakh will not be taken in the balance sheet. Remember, only subscribed, called and paid up capital will appear in the balance sheet. तो प्रॉब्लम में जो ऑथराइज्ड कैपिटल दिया, वो ऑथराइज्ड कैपिटल ओनली नोट्स में बताकर यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे. This should not be taken in the balance sheet. हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each 1 lakh है और कॉल्स इन एरियर 6,400 है. कॉल्स इन एरियर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो नोट नंबर 2 में देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each 1 lakh लेस कॉल्स इन एरियर 6,400. तो 93,600 will appear in the balance sheet. Then land, building, plant and machinery, furniture. ये चारों फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे. टैंजिबल फिक्स्ड एसेट नोट नंबर 5. ये नोट नंबर 5 में 4 लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ऑल द 4 assets. Then carriage inward, this will be taken under other expenses. Then wages, employee benefit expenses. Then we have salaries, same employee benefit expenses. Then bad debts provision on 1/4/2014, ये old provision. ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स देता है वो ओल्ड है, लास्ट ईयर का है. करंट ईयर का जो प्रोविजन बनाना है वो एडजस्टमेंट में देता है. तो दोनों को कंपेयर करना पड़ता है, न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन. तो लास्ट एडजस्टमेंट में हम देखेंगे हाउ मच इज द न्यू प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन तो 1,400 है. सेल्स 80,000, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स आर 80,000. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, नेट सेल्स हमको चाहिए. तो सेल्स 80,000 लेस सेल्स रिटर्न 1,700, तो 78,300 आर द नेट सेल्स. देन बैंक चार्जेस. द बैंक चार्जेस कैन बी टेकन इन द फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 100 rupees. देन कोल, गैस एंड वाटर, अदर एक्सपेंसेस. देन रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स, टैक्सेस पेड, अदर एक्सपेंसेस. परचेजेस, दिस विल बी टेकन अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. Opening stock, add purchases. Then purchase return. Purchase return should be deducted from purchases. तो opening stock में purchase को add करेंगे, purchase return को minus करेंगे. Then bills receivable, trade receivable. The bills receivable will be taken under trade receivable, current asset. General expenses, this will be taken under other expenses. Then sundry debtors. अदर सन्ड्री डेटार्स विल कम अंडर ट्रेड रिसीवेबल. जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें सन्ड्री डेटार्स, बिल्स रिसीवेबल, 2 आइटम्स आएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल. सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी टेकन अंडर ट्रेड पेबल. स्टॉक ऑन 1/4/2014, ये ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक ऑन 1/4/2014 इज द ओपनिंग स्टॉक. देन फायर इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस. देन कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे. करंट एसेट में लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. शेयर प्रीमियम, This share premium will come under reserves and surplus.
सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते हैं उसको, शेयर प्रीमियम भी कहते हैं. दिस विल कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. देन वी हैव जनरल रिजर्व. दिस आल्सो कम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो दो आइटम हो गए, शेयर प्रीमियम और जनरल रिजर्व, बोथ विल कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो वी हैव डिस्कस्ड द ट्रायल बैलेंस. अब एडजस्टमेंट देखिए. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 2.5%, 2.5%, on plant and machinery at 10% and furniture fixture at 10%. तो तीन एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है. तो यहां पर देखिए डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 2.5% ऑफ 25,625, प्लांट के ऊपर 10% ऑफ 15,000, 1,500, फर्नीचर 10% ऑफ 3,200, 320. द टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन 2,445 यहां पर ले लिया. डिप्रिसिएशन 2,440. अब ये डिप्रिसिएशन को कंसर्न्ड एसेट्स में से माइनस करेंगे. इन द बैलेंस शीट जो टैंजिबल एसेट्स है वो टैंजिबल एसेट्स में से निकाल देंगे. लैंड 10,000, लैंड के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड इज अनडिप्रिशिएबल एसेट. देन बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन निकाल दिया, प्लांट में से डिप्रिसिएशन निकाल दिया, फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन निकाल दिया. राइट. नेक्स्ट, मेक ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर बैड डेट्स. ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, इज द न्यू प्रोविजन. तो अब यहां पर आइए, अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स न्यू. तो 5% ऑफ 40 to 800, 2,140. तो 2,140 इज द न्यू प्रोविजन. और ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविजन दे दिया है वो 1,400. तो माइनस कर दो, 2,140 minus 1,400, 740 rupees is the net provision on for doubtful debts. तो provision for doubtful debts net amount कितना आ गया? 740. Then carry forward fire insurance premium 120. जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे थे उसमें से 120 रुपये को कैरी फॉरवर्ड कर दो, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम. तो निकाल देंगे 120 रुपीज को. फायर इंश्योरेंस 400 रुपीज पे करे, ट्रायल बैलेंस में 400 दे दिया, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 120 रुपीज को कैरी फॉरवर्ड कर दो, माइनस कर दो. तो 400 माइनस 120 यू विल गेट 280. अब ये 120 रुपीज जो कैरी फॉरवर्ड कर दिए, दिस विल कम इन द बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो एसेट साइड पे देखिए, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में ले सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ले सकते हैं 120 रुपीज. ये हो गया कैरी फॉरवर्ड. नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. तो व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? वेजेस आउटस्टैंडिंग 3,200, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 500. तो सैलरी पे करे और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, वेजेस कुछ पे करे, वेजेस कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, तो दोनों को भी यहीं पर लिखें. वेजेस पेड, सैलरीज पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग. तो ये टोटल ऑफ दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29,700. ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगेन इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, दो बार आएगा. एक बार तो इनकम स्टेटमेंट में ले लिए, अब बैलेंस शीट में लेंगे. बैलेंस शीट में कहां पर लेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज. नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में अदर करंट लायबिलिटी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट एंड रेट्स आउटस्टैंडिंग. ये भी और एक आउटस्टैंडिंग है. रेट्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 200 रुपीज, ये भी आउटस्टैंडिंग. तो यहां पर आउटस्टैंडिंग लिए, देखिए आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस 200. दो बार आता, एक बार अदर एक्सपेंसेस में ले लिए, फिर अगेन आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस विल बी टेकन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज. नोट नंबर 4. तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट एंड रेट्स आउटस्टैंडिंग. राइट. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2015 was 30,000. 30,000 rupees is the closing stock. तो closing stock will be deducted while calculating cost of metal consumed. और वही क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंटरीज में लेंगे, करंट एसेट. दैट्स इट. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स एंड एडजस्टमेंट्स. एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए. इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, नेट सेल्स आ गया. अदर इनकम नहीं है. इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट हैव एनी अदर इनकम. Then cost of metal consumed, opening stock, add purchase, minus purchase return, minus closing stock. We'll get cost of metal consumed. Employee benefit expense में wages paid, wages salary paid, wages outstanding, salary outstanding.
देन फाइनेंस कॉस्ट में बैंक चार्जेस ले लिए, डेप्रिसिएशन में तीनों एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लिए टोटल, देन अदर एक्सपेंसेस में ऑल दीज एक्सपेंसेस वी हैव टेकन। नॉर्मली स्टूडेंट्स विल कमिट द मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग अदर एक्सपेंसेस, यहां पर केयरफुल रहना, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग है वो भी लेते हैं, जो प्रीपेड है उसको निकाल देते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड जो कर रहे हैं वो प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे, राइट। दिस इज ऑल अबाउट, और अगेन इन दिस प्रॉब्लम रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंसेस आर मोर। रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू खाली 78,300 है, जबकि एक्सपेंसेस जो हो रहा 80,765 हो रहा, खर्चा ज्यादा है, तो फिर लॉस हो गया। 78,300 minus 80,765, you will get minus 2,465. You are getting minus 2,465. जब माइनस आ गया तो क्या हो गया? लॉस। तो लॉस फॉर द ईयर, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ विल कम टू द बैलेंस शीट। एबीसी कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल नंबर 1। अब शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल भी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी। ऑथराइज्ड कैपिटल खाली इंफॉर्मेशन है, लिखकर छोड़ देना, कुछ नहीं करना। हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आएंगे। कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दी, वी गॉट द सब्सक्राइब। रिजर्व्स एंड सरप्लस में शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम जैसा दिया है सेम कॉपी कर लिया, लेकिन जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व में से लॉस को निकाल दिया। यहां पर करंट ईयर लॉस है, 2,465 का लॉस है, तो रिजर्व, जनरल रिजर्व में से करंट ईयर के लॉस को माइनस कर देंगे। ये जनरल रिजर्व 24,000 माइनस लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2,465, माइनस कर दो 21,535। अब ये शेयर प्रीमियम 6,000 और जनरल रिजर्व 21,535, टोटल इज 27,535। उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही आइटम है 13,200। अदर करंट लायबिलिटी में वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट एंड रेट्स आउटस्टैंडिंग, तीनों को मिला लो 3,900 हो गया। दैट इज द एंड ऑफ द लायबिलिटी साइड। The liability side total is 1,38,235. Now we'll come to the asset side. Assets, non-current assets, tangible, fifth note. अब tangible assets में land का वैल्यू सेम ले लेंगे, दो कॉलम्स ओपन करेंगे। सेकंड कॉलम में डायरेक्टली लैंड का वैल्यू 10,000, बिल्डिंग फर्स्ट कॉलम में 25,000 लेस डेप्रिसिएशन 625। डेप्रिसिएशन तीनों एसेट्स के ऊपर यहां पर कैलकुलेट कर लिया। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 625, प्लांट 1,500, फर्नीचर 320। अब ये डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे, बिल्डिंग में से 625 निकाल दिया, प्लांट में से 1,500, फर्नीचर में से 320, तो टोटल ऑफ दिस इज 50,755। दिस इज द टोटल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं है प्रॉब्लम में। देन इन्वेंटरी 30,000, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। देन ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आएंगे, सन्ड्री डेटार्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और सन्ड्री डेटार्स में से न्यू प्रोविजन माइनस करना, जो एडजस्टमेंट में 5% दिया वो निकाल देना। अब देखिए ट्रेड यहां पर है, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटार्स 42,800 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% इसका कैलकुलेट करिए, 2,140 माइनस कर दो, बिल्स रिसीवेबल ऐड कर दो 41,860। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी सिंपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों को ऐड कर लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अदर करंट एसेट, अब अदर करंट एसेट में फायर इंश्योरेंस premium carried forward, prepaid, that we have taken under other current assets 120. That's it. This is the end of problem number 17. Come on. Now we'll start problem number 18. See the problem number 18. The Alpha Manufacturing Company Limited was registered with a nominal capital of rupees 6 lakh. Nominal capital means authorized capital, maximum capital. In equity shares of rupees 10 each. तो कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स है of rupees 10 each. 60,000 into 10, 6 lakh. The following is a list of balances extracted from its books on 31st March 2015. So trial balance items are given, some adjustments are given. First, calls in arrear. The calls in arrear will be deducted from subscribed capital. Here it is. 40,000 equity shares of 10 each, 4 lakh minus calls in arrear. तो subscribed and called up capital में से calls in arrear को
माइनस करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ लिखकर छोड़ देंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each 6 lakh. This will not come in balance sheet. Only information we are writing notes. Premises, tangible fixed asset. Premises will come under tangible fixed assets. You can see here, premises 3 lakh. Plant and machinery, again tangible fixed asset. Plant and machinery. Interim dividend paid. Dividend paid will be deducted from profit in reserves and surplus. तो reserves and surplus में से प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। देखिए प्रॉफिट पहले से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 14,500 है, करंट ईयर का प्रॉफिट 61,000, दोनों प्रॉफिट को ऐड कर 75,500 में से इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। देन स्टॉक ऑन 1/4/2014 ओपनिंग स्टॉक। देन फिक्सचर्स, दैट इज आल्सो अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। फिक्सचर्स आल्सो कम्स अंडर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। Sundry debtors, trade receivable. Sundry debtor will come under trade receivable. Goodwill, intangible asset. Goodwill is an intangible asset. Cash in hand, cash at bank. Last item, cash and cash equivalent. Then purchase of raw material, cost of material consumed. Then preliminary expenses. Now preliminary expenses के लिए देखना है कि adjustment में क्या write off करने के लिए कहा या नहीं कहा। अगर एडजस्टमेंट में दे दिया कि राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिया तो फिर दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विल टेक इन अंडर अदर एक्सपेंसेस। राइट ऑफ करने के लिए इंस्ट्रक्शन अगर दिया है एडजस्टमेंट में तो यहां पर ले लेंगे। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया, तो वी शुड नॉट राइट ऑफ, दैट शुड बी टेकन इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में किधर लेंगे स्पेसिफिक मेथड नहीं है, उसके लिए authors will take the preliminary expenses, other non-current assets. Some authors will deduct from preliminary expenses. Some authors will be taken under other current asset. तो अलग अलग treatment है। तो now what we will do is we will deduct preliminary expenses from reserves and surplus. From reserves and surplus. अब ये profit है, profit में से interim dividend निकाल दिया, preliminary expenses को भी यहां पर निकालेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम साइलेंट है इसीलिए दैट इज नॉट रिटन ऑफ, दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये एक न्यू पॉइंट। देन वेजेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फ्राइट एंड कैरेज, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फी, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, अदर एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। अब डिबेंचर इंटरेस्ट जो पे करे 9,000 पे करे, एक्चुअली डिबेंचर्स कितने हैं उसी के नीचे देखिए नेक्स्ट लाइन पे दिया 6% डिबेंचर 3 लाख, 3 लाख रुपए के डिबेंचर है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% है। नाउ इफ यू कैलकुलेट 3 लाख इंटू 6%, 3 लाख इंटू 6% यू विल गेट 18,000। तो कैलकुलेट करे तो इंटरेस्ट 18,000 आ रहा, जबकि पेमेंट कितना करे, डिबेंचर इंटरेस्ट पे 9,000 पे करे। तो ये बात क्लियर हो गया पॉइंट कि आउट ऑफ 18,000 डिबेंचर इंटरेस्ट ओनली 9,000 डिबेंचर इंटरेस्ट वाज पेड, रिमेनिंग 9,000 इज आउटस्टैंडिंग। यानी 18,000 रुपए डिबेंचर इंटरेस्ट में से 9,000 रुपए पे करे, बाकी के 9,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों को मिलाकर लेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 9,000, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 9,000, टोटल इंटरेस्ट इज 18,000। अब ये 9,000 रुपीज डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है दैट विल अगेन कम इन द बैलेंस शीट। जो पे कर दिए वो एक ही बार आता, जो नहीं पे करे वो 2 बार आता। यहां पर भी आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए, देन अगेन इट विल बी टेकन इन अदर करंट लायबिलिटीज। नोट नंबर 5, अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 9,000। चलिए डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट आइटम है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल 4 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल 4 लाख। एक शेयर 10 रुपए का है तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000। तो कंपनी के पास 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। उसमें से कॉल्स इन एरियर 7,500 माइनस कर देंगे, 3,92,500 इज द paid up capital. Next, 6% debentures. This will be taken under long-term borrowings.
6% debentures will be taken under long term borrowings. Then profit and loss statement, credit balance. तो दिस इज अ बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट. लास्ट ईयर से जो आ रहा है सरप्लस, तो सरप्लस जो है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस 14,500. तो पहले से 14,500 सरप्लस है, उसमें और करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देंगे 61,000. करंट ईयर प्रॉफिट 61,000. तो ये 14,500 पहले का प्रॉफिट है और करंट ईयर का प्रॉफिट 61. टोटल मिलाकर 75,500. Sundry creditors, trade payable. Then we have sales, revenue from operations, 4,15,000. General reserve, reserves and surplus. Reserves and surplus है पहला item, general reserve. Provision for doubtful debts on 1/4/2014, beginning, opening. यानी old provision यहाँ पर 3,500. Same, every problem we are coming across, old provision and new provision. Now we'll see the adjustment. Prepare profit and loss statement and balance sheet in the proper form after making the following adjustment. Depreciate plant and machinery by 10%. Depreciation plant and machinery के ऊपर 10%. 10% of 3,30,000. 33,000 is the depreciation. एक ही asset के ऊपर depreciation. Next, provide half year debenture interest due. अब ये adjustment में अगर नहीं भी देता तो हम provide करते. 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है बोल रहा हूं, यानी 9,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करे और 9,000 पे करना है, यानी आधा पे करे आधा पे करना है. तो अगर एडजस्टमेंट में ये नहीं भी देता तो डेफिनेटली वी वुड हैव प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, न्यू प्रोविजन. तो जस्ट लाइक द प्रीवियस 2-3 प्रॉब्लम्स वी आर डूइंग द सेम थिंग. न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन निकाल देंगे, ओनली डिफरेंस लेंगे और फिर न्यू प्रोविजन को बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर देंगे. देन स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015, क्लोजिंग स्टॉक 95,000, क्लोजिंग स्टॉक 95,000 माइनस कर दिया और ये क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंटरीज में लेंगे. दैट्स इट. दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द आइटम्स एंड एडजस्टमेंट्स. नाउ सी हियर. Alpha Manufacturing Company profit and loss statement for the year under revenue from operations, sales. अदर इनकम नहीं है. कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 2 आइटम, वेजेस सैलरीज. फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट. डेप्रिसिएशन में एक ही प्लांट एंड मशीनरी. अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस, फ्राइट, कैरेज, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डायरेक्टर्स फीस. द टोटल इज 38,365. नाउ ए माइनस बी. तो 4,15,000 माइनस 354 पॉजिटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये पॉजिटिव है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में लॉस आ रहा था, अब यहां पर प्रॉफिट आ रहा है. 61,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देयर आर नो टैक्सेस. प्रॉब्लम में कोई इनकम टैक्स प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, पुट अ डैश. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61,000. तो वी गॉट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. नाउ वी कम टू द बैलेंस शीट. शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नंबर 1. You can see authorized capital, issued capital, कॉल सिनेरियो निकालने के बाद 3,52,000. Reserves and surplus. अब यहां पर केयरफुली देखिए. जनरल रिजर्व वी हैव टेकन, ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम में दे दिया जनरल रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस. तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस सरप्लस पहले से 14,500 रुपये प्रॉब्लम में दे दिया और फिर करंट ईयर का प्रॉफिट 61,000. पूरा प्रॉफिट मिलाकर 75,500 प्रॉफिट है. अब प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड पे करें. डिविडेंड जो पे करते हैं दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. तो अल्टीमेटली द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 58,000. नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही आइटम आता है डिबेंचर्स. तो प्रॉब्लम में दिया 6% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख. ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स, ओनली 1 आइटम. अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के ऊपर 9,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, अभी आउटस्टैंडिंग है. द टोटल ऑफ द लायबिलिटी इज 8,47,500. नाउ एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल. टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में प्रेमिसेस 3 लाख, नो डेप्रिसिएशन. प्लांट एंड मशीनरी 3,30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 33,000. 33,000 डेप्रिसिएशन, 2,97,000. फिक्सचर्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया प्रॉब्लम में, सेम अमाउंट वी हैव टेकन. तीनों को ऐड कर लो 6,04,020.
इंटैंजिबल एसेट में एक ही इंटैंजिबल एसेट दिया है, दैट इज गुडविल 25,000. इन्वेंटरीज क्लोजिंग स्टॉक 95,000. ट्रेड रिसीवेबल में डेटार्स बिल्स रिसीवेबल, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया, ओनली डेटार्स. तो डेटार्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल देंगे. डेटार्स आर 87,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% comes to 4,350, 82,650. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक दोनों को ऐड कर लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. द टोटल ऑफ द एसेट्स 8,47,500. बैलेंस शीट tallied. So this is the end of problem number 18.